Assalamu alaikum students, I am Ikra and I welcome you all to Zavia Educational Services platform. So students, today I am going to tell you about a very basic yet mandatory part of our English, and that is prepositions. Basically, prepositions are those words that tell us about the relations between things and the nature of relation between them. When I say nature of relation, I mean to say that if we use, for example, a preposition in, and I say the book is placed in the drawer, and on the other hand, I use a preposition on, and I say the book is placed on the dais. So in the first example, when I say in, it is basically giving me an idea that the book is somewhere within the capacity or limits of the drawer. And when I say on, it means that the book is physically placed on the dais. This is a very basic example. So let's talk about the types of prepositions according to their nature, according to their occurrence in English language, and the use of prepositions. Basically, when we talk about the types of prepositions, first of all, we say that these are the words that connect two things. The things can be in the form of, you can say it can be two living things or two non-living things or whatsoever, two things, and represent the nature of relation between them. The nature of relation between them. Between them. Then we have types. When we talk about types of preposition, we basically divide prepositions in two forms or two aspects. First, the occurrence or the presence of preposition, or how they are by nature. So by nature, if we divide them in types, the first one is single preposition. Students, mostly you have seen that we use such words like on, in, of. They are those prepositions which comprise of 2 to 3 letters and they themselves are single worded, like they occur as such. एक लफ्ज़ की फॉर्म में जो prepositions हमारे पास अकर करती हैं और उनके मैक्सिमम 2 से 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, they are basically single prepositions. For example, as I just told you, single preposition में हमारे पास ये preposition आएंगी like on, in, then you can say of, up, etc. By their appearance, you can see कि ये हमारे पास छोटी छोटी prepositions हैं, but when they are used in a sentence, तो ये हमें nature of relation बताएंगी उन दो चीज़ों के दरमियान जिनको ये connect कर रही होंगी. Second type is double preposition. Basically, जो हमारे पास double preposition होती है, that is made up of two single prepositions. Double preposition is made up of two single prepositions. And ये preposition वो prepositions हैं, ये words वो words हैं जिनको कि हम खुद नहीं बनाते कि हम किसी भी दो तरह की prepositions को मिला दें और कह दें कि ये हमारे पास double preposition है, बल्कि इनका existence English language में as such है and they have a specific meaning. When I say double preposition, तो हम इसकी अगर एग्जाम्पल ले लें तो ये हमारे पास होंगी like into, onto, upon, etc. अगर आप इनके स्ट्रक्चर पे देखो तो आपको ये आइडिया होगा स्टूडेंट्स कि ये वो prepositions हैं जो दो सिंगल्स को मिला के एक वर्ड बना है, and these are not made by us, rather they have a specific meaning in English language और इनका different meaning होता है from single prepositions. यहाँ पर मैं छोटा सा कंपैरिजन करूँगी इन दो टाइप्स के दरमियान. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से द वर्ड इन और एक मेरे पास वर्ड आ जाता है इन टू. अब यहाँ पर ये हमारे पास सिंगल preposition है जबकि ये डबल है. इसका मतलब होता है वी आर डिपिक्टिंग समथिंग जो कि किसी दूसरी चीज़ के अंदर ऑलरेडी है, उसकी बाउंड्री के अंदर मौजूद है. जैसा कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल बोली, द बुक इज़ प्लेस्ड इन द ड्रॉर. इसका मतलब है कि बुक ऑलरेडी वहाँ पर है, मैं यहाँ पर अपने सेंटेंस में सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि वो वहाँ पर मौजूद है. लेकिन अगर मेरा सेंटेंस ये होगा प्लीज़ पुट द बुक इनटू द ड्रॉर, तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर एक फोर्स का एक्शन हुआ, एक फोर्स का फैक्टर आया हमारे पास,
एक एक्शन परफॉर्म हुआ और वो परफॉर्म करके हमने वो पर्टिकुलर चीज़ किसी दूसरी चीज़ की बाउंड्री में रख दी. So there is a difference between in and on to. Same goes with on and on to. If I say the book is placed on the dais, तो I am talking about a factor, a physical factor कि एक बुक है जो फिजिकली डाइस के ऊपर पड़ी हुई है, तो वहाँ पर हम on लगाएंगे. और अगर मैं कहूँ प्लीज़ पुट द बुक ऑन टू द डाइस, तो यहाँ पर मैं एक जो एक्शन का है आइडिया वो दे रही हूँ, एक जो फैक्टर है काम हुआ, एक चीज़ के ऊपर फोर्स लगी और फिर वो दूसरी चीज़ के ऊपर रखी गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑन टू लगा दिया. सेम हमारे पास एक डिफरेंस आता है ऑन और अपॉन में. अब जब मैं ऑन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो आई एम बेसिकली गिविंग द आइडिया कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर फिजिकली पड़ी हुई है. लेकिन जब मैं अपॉन कहूँगी तो आई एम गिविंग अ मेटाफरिकली एन आइडिया कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें प्रैक्टिकली नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन ये एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर ऑब्लिगेटरी है, कोई मस्ट है कि ये काम हमने ज़रूर करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दिस इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन यू टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यहाँ पर जो हमें आइडिया हो रहा है वो एक कंसेप्चुअल चीज़ का हो रहा है, एक ऑब्लिगेशन का हो रहा है. In that case, I will be using upon and not the word on. On वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर फिजिकली मैंने किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है और उसका मैंने आइडिया देना है. इस तरह से हमें ये पता चला कि सिंगल एंड डबल prepositions डिफर इन देयर यूज़. देन कम्स द थर्ड टाइप, जिसको कि हम कहते हैं कंपाउंड preposition. कंपाउंड preposition बेसिकली जो हमारे पास होती है, as the name depicts, it is something that is made up, that is a mixture of some prepositions ना. तो कंपाउंड preposition को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फर्दर इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड preposition, I will just make a column. सिंगल कंपाउंड, डबल कंपाउंड और फ्रेजल preposition. नाउ व्हेन आई सेड सिंगल, तो आप लोगों के माइंड में ये बात ज़रूर आई होगी कि मैंने तो यहाँ पर सिंगल अभी आपको बताया कि सिंगल तो ये होती है हमारे पास जो एक सिंगल वर्ड जो है एज अ सिंगल वर्ड अकर करती हैं. बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज़ दैट यहाँ पर जो सिंगल वर्ड है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 अल्फ़ाबेट्स मैक्सिमम. ठीक है, यहाँ पे अगर हम फॉर भी लिखते हैं तो वो भी 3 अल्फ़ाबेट्स मैक्सिमम इसके पास जा रहे हैं. ठीक हो गया. लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ आई से कि मेरे पास सिंगल कंपाउंड preposition है, तो यहाँ पर हर वो सिंगल preposition आएगी जिसके 4 या 5 अल्फ़ाबेट्स होंगे, मतलब मोर देन 3 अल्फ़ाबेट्स की जो सिंगल preposition है उसको हम सिंगल कंपाउंड में शामिल करेंगे. जैसे यहाँ पर मेरे पास आ जाती है डाउन, देन आई हैव अपवर्ड. ठीक है, इसी तरह ही मेरे पास इस नेचर के जितने भी वर्ड्स होंगे जो कि मोर देन 3 अल्फ़ाबेट्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं उनको मैं कहूँगी कि ये सिंगल कंपाउंड है. इसी तरह डबल कंपाउंड में हमारे वो वर्ड्स आ जाते हैं जो कि 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट कर रही होगी एक preposition, जिसमें से एक वर्ड होगा, कोई भी वर्ड हो सकता है, और एक हमारे पास जो है वो preposition होगी. फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशंस लाइक इन स्पाइट ऑफ, ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें एक वर्ड है और उसके साथ एक preposition है, लेकिन ये पूरा मिल के एक बनी बनाई फॉर्म में हमारे पास मौजूद है और इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है इंग्लिश लैंग्वेज में. इसी तरह के हमारे और भी बहुत सारे जो है वो एक्सप्रेशंस हैं. यहाँ पर मैं एक बात जो हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स. अब जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं हमारे पास बेसिकली उनका क्या आइडिया है. फ्रेजल वर्ब्स में हम मोस्टली ये पढ़ते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जिनके साथ जब डिफरेंट prepositions लग जाती हैं तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस बन जाते हैं. 4 भी prepositions लगी तो 4 अलग अलग एक्सप्रेशन बन गए, 4 अलग अलग वर्ड्स बन गए और उन चारों के अलग अलग मीनिंग्स आ गए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई यूज़ अ वर्ड बियर, बियर का मतलब क्या है, बर्दाश्त करना. ठीक हो गया, दिस इज़ अ वर्ब, अ काइंड ऑफ वर्ब इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज. बियर के साथ हम डिफरेंट prepositions लगाते हैं, लाइक बियर डाउन का मतलब होता है किसी को हरा देना, बियर अवे लेकर भाग जाना,
बियर आउट, कहीं से निकलना। ठीक हो गया। तो यहां से हमें यह पता चला कि मैंने 3 डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगाई एक ही वर्ड के साथ, तो वो मेरे 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस बन गए। इनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, जो कि हमारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और हमें अपने एग्जाम्स में, कंपेटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं उसमें एज अ क्वेश्चन भी ये आ सकते हैं। सो ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इनको भी हम बेसिकली इस टाइप में फॉल करवाते हैं, क्योंकि अगर हम इनका भी स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा है कि एक वर्ड है और उसके साथ एक प्रेपोजिशन लगी है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। उसके बाद हमारा जो थर्ड आ जाती है टाइप, वो है फ्रेजल प्रेपोजिशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने क्लियर रहना है कि एक हमारे पास होती है प्रेपोजिशन फ्रेज, जो कि हमारी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में आती है। हमारे पास नाउन फ्रेज है, प्रोनाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज है। वो हमने कह दिया कि हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिक्सचर ऑफ फ्यू वर्ड्स हैं, ठीक है, और जिनमें से एक वर्ड अगर वो प्रेपोजिशन फ्रेज है तो प्रेपोजिशन का होगा, एक अगर नाउन फ्रेज है तो वो नाउन होगा, एक अगर प्रोनाउन फ्रेज है तो वो प्रोनाउन होगा। यहाँ पर मैंने कहा कि फ्रेजल प्रेपोजिशन इनका एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से चलता है, एक हमारे पास वर्ड है और उसके दोनों तरफ एक एक प्रेपोजिशन है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्रेजल प्रेपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल्स थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करूँ कोई एक दो, तो इसमें I can say in accordance with, in view of, in order to। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको इस वर्ड के दोनों तरफ जो है वो प्रेपोजिशंस लगी नज़र आ रही हैं, और ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसका कि एक स्पेसिफिक मीनिंग है। इस तरह के जो हमारे पास वर्ड्स होंगे या इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होंगे जो कि दो चीज़ों को, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस और व्हाट्सोएवर स्ट्रक्चर, दो चीज़ों को कनेक्ट करेंगे और उनके दरमियान रिलेशन को डिपिक्ट करेंगे, वो हमारे पास फ्रेजल प्रेपोजिशंस हो जाएंगी। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। यहाँ पर अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अलग से बताना चाहूँगी। ये तो हमने वो कर लिया ना सारी टाइप्स के हमारे पास किस नेचर में प्रेपोजिशंस आती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ अकॉर्डिंग टू द यूज़ हम कुछ प्रेपोजिशंस को हाईलाइट करते हैं और देखते हैं कि वो किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास प्रेपोजिशन होती है जिसको कि हम मोस्टली डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। preposition of time and place। हमारे पास बेसिकली मोस्ट कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस होती हैं, चंद एक हैं, जिस तरह मैंने कह दिया इन, ऑन, एट। अकॉर्डिंग टू टाइम अगर हम प्रेपोजिशंस को डिवाइड करें तो इससे मुराद वो वर्ड्स हैं, मतलब ये वाली प्रेपोजिशन जिनको हम टाइम का आइडिया देने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इनका आपस में जो डिफरेंस है वो हमें इनका मीनिंग क्लियर करेगा। जब हमने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऐसी सेंटेंस में जहाँ पे हमने टाइम का आइडिया देना है और वहाँ पे हम प्रेपोजिशन इन यूज़ कर रहे हैं, ऑन यूज़ कर रहे हैं, एट यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एट प्रेपोजिशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमने एग्जैक्टनेस ऑफ टाइम को बताना है। एग्जैक्टनेस ऑफ टाइम में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? जब हमने एग्जैक्ट एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, तो वहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम का आइडिया दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी अगर रेंज हमारी बड़ी हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? हम वहाँ पर ऑन लगा देंगे। जैसे मैं डेज़ के नाम लेती हूँ, मैं कहती हूँ ऑन संडे, ठीक है ना, तो थोड़ी सी रेंज जो है इसको मैं ब्रॉड कर रही हूँ, तो मैंने कह दिया ऑन संडे, ऑन मंडे। यहाँ पर हमें ये पता है कि संडे और मंडे का एक स्टार्टिंग टाइम है और एक एंडिंग टाइम है, लेकिन वो जो टाइम है उसमें एक रेंज है, हमारे पास ब्रॉडर रेंज है, ठीक है। जब मैंने उसको बताना है तो आई विल बी यूजिंग द प्रेपोजिशन ऑन, और जब मैंने और भी इसको ब्रॉड कर देना है, एक बड़ी बाउंड्री में लिमिटेशन ऑफ टाइम को का मैंने आइडिया देना है, तो वहाँ पर मैं इन लगा दूँगी। यहाँ पर मैं कह दूँगी कि इन मेरे पास बेसिकली टाइम का टाइम रेंज इज़ ब्रॉड, ठीक है। यहाँ पर जो है वो और भी ब्रॉड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से इन जनवरी, इन फेबररी, अब जनवरी फेबररी एज़ कम्पेयर टू मंडे एंड संडे उनकी रेंज और भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने कह दिया कि एक बड़ी अगर लिमिटेशन में, बाउंड्री में हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो वहाँ पर इन आएगा। उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया तो ऑन आएगा, और अगर एग्जैक्ट टाइम को बता दिया तो वहाँ पर एट आएगा।
सेम गोज विद प्लेस। प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? जब मैंने एट कहना है तो वहां पर एग्जैक्टनेस ऑफ प्लेस आ जाएगी। जब मैंने ऑन यूज करना है तो वहां पर फिजिकली किसी सरफेस के ऊपर है हम। और जब मैंने इन यूज करना है तो तब मैं एक ऐसी बाउंड्री को बताऊंगी जिसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं कि उसके अंदर कहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ मौजूद है, तो वहाँ पर मैं इन लगा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस जो है वो बोलती हूँ और उसके अंदर इन तीनों की डिपिक्शन हो जाएगी। आई से शी इज स्टैंडिंग एट जे डॉट ऑन सेकेंड फ्लोर इन अमाना मॉल। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्लेस का आइडिया दिया, जिसमें मैंने एक बड़ी विसिनिटी में या एक बड़ी बाउंड्री में जब उसका आइडिया दिया कि वो कहाँ पर है तो मैंने इन यूज़ किया। उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया, फ्लोर को तो ऑन यूज़ कर लिया। और अगर एग्जैक्ट एक जगह का मैंने बताना था, उस शॉप का नाम बताना था, तो वहाँ पर मैंने एट यूज़ कर लिया। ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस हैं जिनका हमने टाइम और प्लेस के हिसाब से आइडिया ले लिया। इनके अलावा देयर आर ट्रिमेंडस अदर प्रेपोजिशंस जो कि हमारे पास यूज़ होती हैं और हर एक का जो है वो अपना अपना यू कैन से कि एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जिस तरह मैं एक दो तीन और प्रेपोजिशंस हैं जिनको मैं कंपेयर करूँगी, ठीक है, और आपने उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे तरीके से लेनी है। हमारे पास प्रेपोजिशन है जिनको हम बोलते हैं ओवर, अबव। जब हमने किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर होने का आइडिया देना है, ठीक है, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर हो और एक्सेसिबल हो, तो हम वर्ड ओवर यूज करते हैं, एक्सेसिबल। और जब एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर हो और एक्सेसिबल ना हो तो हम अबव यूज करते हैं। अब जब मैंने कहा एक्सेसिबल तो मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ, इजीली एक्सेसिबल की बात कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक्सेसिबल होती हैं लेकिन वो इतनी आसानी से हम उनको रीच आउट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, तो वहाँ पर हम अबव का आइडिया देते हैं। और इस तरह से हम इसको ओवर एंड अबव को दो सेंस में यूज़ कर सकते हैं, या तो हम फिजिकली किसी चीज़ की बात कर रहे हैं या कंसेप्चुअली भी। मैं दोनों तरह से आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं कहती हूँ द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो ब्रिज है वो ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर से जा रहा है। और ओवर में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, व्हेन समथिंग इज कवरिंग समथिंग एल्स। जब हम ओवर की बात करते हैं तो इट मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह गए और कवर करते हुए गए और एक्सेसिबल भी हैं, तो वहां पर हम ओवर यूज करेंगे। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, इट मीन्स कि वो रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक पर जा रहा है और उसको कवर करता हुआ जा रहा है, बट इट इज एक्सेसिबल। और अगर मैं ये कहती हूँ द क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्लाउड जो हैं वो पहाड़ों के ऊपर हैं और प्रैक्टिकली एक्सेसिबल नहीं, बिकॉज वी नो कि क्लाउड्स पे पहुंचना जो है वो प्रैक्टिकली ईजी नहीं है, तो वहां पर मैं अबव लगा दूंगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने कह दिया कि एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी। फिर मैंने एक बात कही कि हमने ओवर एंड अबव कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी इस्तेमाल करने हैं। कॉन्सेप्ट किस तरह से होगा? अगर मैं कह देती हूँ डू नॉट राइट ओवर दिस लाइन, तो इट मीन्स कि मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ, ओवर से मुराद ये है कि इस लाइन की कहीं आसपास इसके नहीं लिखना। और अगर मैं कहती हूँ कि डू नॉट राइट अबव दिस लाइन, ठीक है, तो वहां पर मैं आइडिया दे रही हूँ कि इसके ऊपर किसी भी जगह पे दूर दूर तक आपने नहीं लिखना। ये इन दोनों में फ़र्क है, फिजिकली किसी कॉन्सेप्ट को लेकर और कंसेप्चुअली भी। इसी तरह हमारे पास दो वर्ड्स आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं अंडर एंड बिलो। अंडर वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के नीचे है लेकिन एक्सेसिबल है, और बिलो वो जो प्रैक्टिकली एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पर हम बिलो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, मैं इस तरह से ये कह सकती हूँ कि देर इज़ वोल्केनिक एक्टिविटी बिलो द अर्थ सरफेस। तो वोल्केनिक एक्टिविटी हमारी जो ये क्रस्ट है जिस पे हम मूव करते हैं, इससे बहुत नीचे है, जो प्रैक्टिकली एक्सेसिबल नहीं है कि कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो तो वो हम तक पहुँच भी नहीं सकती, इतना दूर है। वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे बिलो। और अगर मैं कह दूँ देर इज़ अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन अंडर द अर्थ क्रस्ट,
ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो ज़मीन जहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं, जहाँ पे हम चलते फिरते हैं, इसके बिल्कुल नीचे जो लेयर है वो वहाँ पर मिनरल्स या गैशियस फॉर्म में चीज़ें पाई जाती हैं, कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगी अंडर। इसी तरह ही अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और मैं कहती हूँ डू नॉट राइट अंडर दिस लाइन, तो वो एक स्पेसिफिक उसके आसपास की जो लिमिट है मैं उसका आइडिया दे रही हूँ। और अगर मैं कहूँगी डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, तो मैंने कह दिया कि इसके नीचे कहीं पर भी कुछ नहीं लिखना आपने। ठीक हो गया। तो इन दोनों को हमने इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरह बहुत सारी और प्रेपोजिशंस हैं हमारे पास जिनका अपना एक स्पेसिफिक यूज़ है। अगर हमें वर्ड आ रहा है थ्रू, तो हम इसका आइडिया लेंगे कि दो चीज़ों के एग्जैक्ट दरमियान से जो चीज़ जब क्रॉस कर रही होती है तो हम वर्ड थ्रू यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई है किसी चीज़, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के फिजिकली साथ है तो हम बिसाइड यूज़ कर लेते हैं। अगर हमने एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अलावा करनी है तो वहाँ पर हम बिसाइड्स यूज़ कर लेते हैं। अपने पेयर ऑफ वर्ड्स में हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली ये हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं। सिंस और फॉर जो है वो हमें टाइम का आइडिया देती हैं। अगर हमने फ्रॉम और टू लगाना हो तो हम टाइम का आइडिया लेते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अनटिल हमारे पास आइडिया देता है हमें टाइम का कि डू नॉट गो देयर अनटिल इट्स 9 o'clock या टिल, या हम इस तरह से कह सकते हैं, इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर मैं इसको बताऊं तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जब हमने टाइम का आइडिया देना हो कि वहाँ तक, ठीक है, अनटिल यू रीच देयर, ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा जब तक, ठीक है ना, एक रफ सा आइडिया मैं दे रही हूँ। अनलेस हमारे पास कंडीशन को बताते हैं, अगर तुम्हें बुलाएं तो फिर जाना, ठीक है। अगर मतलब अनलेस जब तक नहीं बुलाते, ठीक है, एक रफ आइडिया में एक एक्शन का दे रही हूँ। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कुछ प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है, जिनको हमने समझ लिया। इनके अलावा डिफरेंट काइंड्स, छोटी मोटी हर किस्म के वर्ड्स, प्रेपोजिशंस होती हैं जिनके अपना अपना एक यूज़ है। स्टे इन टच विद ज़ाविया एजुकेशनल सर्विसेज। इन सब चीज़ों के आपको कंटेंट, इन सब चीज़ों के नोट्स की प्रोविजन के लिए, एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू डू रिगार्डिंग